because we promised to give them a BNI time. And in BNI, we start everything on time. So let's have a round of applause. Can we have a clap for all our panelists today? We have two great resources and a great moderator amongst us. So let's have a clap. Okay, great. So the duration of the session before we go on, everything, सब कुछ आएगा. Picture अभी शुरू भी नहीं हुई है मेरे दोस्त. So let's wait for some things. Good evening, BNI. Good morning, BNI. We hope that everyone is in great health and safety comes first. So today, this was very, this is my favorite, one of my favorite topics, artificial intelligence. And when I discussed it with our moderator for the evening, Mohit, he said, ma'am, I have two wonderful resources with me available, and they are known to me and I can talk to them. And I think we can do this, but picture yahan khatam nahi hui. I told the moderator, I told Mohit, let's take it to our children. Because that is something which, children look forward to. And here we are. So let me introduce you to two people. As you can see on your screen, the first person on our screen is Mr. Anil Gowda. He is from PinSmart and yes, the IT city of the country, Bangalore. So Anil, good morning here. So we say good morning, BNI. You're on mute. You can unmute meanwhile and address our people here. Anil, you need to unmute. Okay, you still are on unmute. We will come back to you. Meanwhile, let me introduce to the other panelists today with us, Rahul Singh from Noida. He is the owner or co-founder for NeuralSift. And thank you, Rahul, and good evening. Anil and Rahul, can we have a address from you, a quick hi from both of you for our members here? Yeah, hi everybody, Rahul this side. So I'll be taking a quick session, a brief introductory session on machine learning today. And my friend Anil, our friend Anil basically, he'll be taking a quick session on IoT and sensors. So basically, okay. Yeah. Okay, wonderful. Right now, it sounds very alien terms to me myself, but Okay. What I know is only artificial intelligence. Without taking further ado, let me bring in the moderator and let us have a quick introduction about both Anil and Rahul. So let's have a huge round of applause for our dear Mohit. Mohit, our wonderful moderator with Fruitful Fridays is back. Over to you, Mohit. Good morning, BNI, and good morning, members, and we have few visitors on the line also. So this is good evening, but in BNI we normally say good morning. So yeah. So good morning, BNI. We welcome you all to this wonderful session of Fruitful Fridays. I am Mohit. I am a support director consultant for the region. And Ludhiana as a region has been conducting these Fruitful Friday sessions since lockdown. And we have done sessions on blogging, spirituality, yoga, stuff like that. So, and today's session would be on artificial intelligence, and the topic is how artificial intelligence can help you in business. So the topics covered in this would be artificial intelligence, machine learning, and IoT. I can go and speak about it, but let people let the experts speak about it. So we have two very fine gentlemen on board today with us. The first is Rahul, and Rahul and me have been known to each other for past 19 years. Yes, 19 years. We have been batchmate, college mates, cute mates, practical mates. We actually shared same wings in the hostel also. So, and we have certain secrets also. So we can actually tell you later on. Yeah. So Rahul and me did our engineering and biotechnology. Yes, surprise. Me also moved into technology and information technology and systems, and Rahul also because I guess Rahul, there was a subject in our course that was called bioinformatics. So that actually pushed us to move from biotechnology to systems. And Rahul and me share a very good connection. We are very close friends also. This is because of one small reason. As most of you know, I was a university captain for last 1.5 years. So before that, there was a cricket tournament in the college, and everybody
we were decent guys in college, you know. So everybody knew us, but they didn't want us to take on their teams because I was not good in cricket. I was good in football and basketball, and Rahul was a big gamer. So nobody could say no to on our face. So this actually, ripped us off. So there were approximately 10 teams, and they had very fancy names. I don't remember, some tigers and all. So just for fun, we made a team called Maggi Masala. So engineers on board would actually know the importance of Maggi noodles in engineering, late nights. So, and we actually took seriously, and we all the way went to lose in the semi-final. So this is how we, Rahul and me share a very strong bond from there. And we have another gentleman on board. This is Mr. Anil Gowda. Mr. Anil Gowda is from Bangalore. He's joining all the way from Bangalore. He's an engineer in electronics, communication, and instrumentation. So after completing engineering, he had a choice to work for major global firms, but he wanted to sail his own ship. So he became an entrepreneur, and he founded two firms, eRachat and PinSmart, which actually deals in IoT and sensors. What are IoT and sensors? Anil would be a better person to tell you that. And Rahul is also an engineer in biotechnology. He has experience of around more than 11, 12 years in data science. He has worked with companies like Capgemini and Mindtree, and he's a founder for NeuralShift. So, and artificial intelligence have machine learning and IoT as a combination to start with, right? So if you see the screen, there's a hilltop. For that, you need boots. That's Rahul Singh. Satellite phone is his engineering skill. A warm jacket, his experience. A rope would be provided by Anil Gowda. Ice axe would be his experience, his education qualification, and the first aid kit. Anil has been a first aid kit to NeuralShift, and PinSmart and NeuralShift have been working together also. So guys, this session would be starting off by Rahul. It will be approximately 40 minutes. Then Anil will take over, and we will be running a live Q&A at the end of the webinar. So Q&A session is actually being active, so you can actually just pop in their questions, and if you miss anything, you need not to worry. We will be sending around the on-demand recording when it's available, right? So before any further ado, I missed one thing for the members, that now I need to tell you one very important thing before coming to the session. A little 30-second about BNI. And BNI is one of the world's largest network organization, present in about 74 countries, and we have approximately 2.6 lakh members. And in Ludhiana, we have approximately 300 members, going very strong. And it is one of the world's largest successful network organization. If you want more information, you can actually go to bni.com and know more about it. And before any further ado, I hand over the session to Rahul. Rahul, take the session away, man. Yeah. Thank you, Mohit. Thanks a lot for the introduction. So, yeah. So we start with what is machine learning. So as you can see, this is the very famous Dilbert strip here, right in front of you. So the strip, as you can see, this guy, Dilbert, I mean, he goes on surfing on the internet, and based on his internet history, he has been suggested that you need to, you need to buy a ticket for base jump from International Space Station, right? So this guy says, then, the internet is trying to kill me. So this is what we call basically machine learning. So it's like, learning from your data. So machine learning actually, it started it originated some 25, 30 years ago. But during that time, the problem was that there was a challenge about data. So machine learning relies heavily on data. मतलब जितना ज़्यादा data होगा हमारे पास, उतना अच्छे से machine जो है learn कर पाएगी. जितना variety of data होगा, उतना easier रहेगा machine को learn करने के लिए. उस टाइम क्या प्रॉब्लम थी आज से 25-30 साल पहले कि देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ डेटा. लेकिन जब से इंटरनेट आया, 3G 4G ये सब चीजें लॉन्च हुई हैं, फेसबुक ट्विटर यूज कर रहे हैं लोग, तो एवरीबॉडी इज प्लेइंग विद डेटा. आई मीन वी आर जनरेटिंग एंड कंज्यूमिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टेराबाइट्स एंड पेटाबाइट्स ऑफ डेटा. सो डेटा आने की वजह से क्या हुआ कि मशीन लर्निंग ने वापस से पुश बैक किया. इट केम बैक अगेन. एंड उसको हेल्प किसने किया? उसको हेल्प किया प्रोसेसिंग पावर ने एंड टेक्नोलॉजी ने. सो कंप्यूटर की स्पीड्स और प्रोसेसिंग पावर लास्ट 10-15 years में immensely improve हुई है. तो combination of this processing power and graphics cards which are essential for computation in machine learning
and the data, it helped machine learning to come back again. Like since last 10 years, अभी तो बहुत तेजी से exponentially बढ़ रही हैं सब चीजें. These are the two key essential requirements for machine learning and data science. तो अब आपने सुना होगा कि लोग terms use करते हैं, people use term like AI and machine learning and data science. So what exactly is AI, what is data science and what is machine learning? So AI is basically जो हमारा aim है, the aim of scientists and engineers and data scientists and people who work in this field, their aim is to build a robot which is exactly like human. So that is AI. So AI is the superset, right? So उसको achieve करने में हमें बहुत time लगेगा. It will take us huge amount of time. We don't know when we'll reach there. Okay, कि जब robots पूरी तरीके से intelligent हो जाएंगे, it will take immense amount of time. तो अब but using the technology and learning from AI, अभी हम क्या करें कि machine learning और data science use करके we are trying to solve small problems. जैसे कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दिया मैंने, एक कंप्यूटर के ट्रेन कर दिया कि डॉग्स और कैट्स में डिफरेंशिएट करो, या आपके मोबाइल में आप फोटोग्राफ्स खींचते हैं सबकी, बहुत सारे लोगों की, तो आपने देखा होगा कि इट ऑटोमेटिकली क्लासिफाइज कि ये राहुल है तो राहुल की सारी फोटो एक साथ वो रख देगा, है ना, टैग करके रख देगा, एक ही फोल्डर में अपने आप कर देता है वो. तो इट इज मशीन लर्निंग, इट्स ट्राइंग टू आपकी फोटो पढ़ के उसमें से देखता है कि किसका फेस क्या है. फेस पहले वो फेस रिकग्नाइज करता है, फिर फेस ढूंढ लिया उसने, फिर फेस में से वो मैच करता है कि अच्छा राहुल है, राहुल और किस फोटोग्राफ्स में है, तो सारी राहुल की फोटो एक जगह रख देगा, मोहित की फोटो एक जगह रख देगा. तो ये मशीन लर्निंग है. iOS में iPhones में है, Facebook में है. Actually it actually captures the features, common features, और उसको कैप्चर करके उसका कॉमन फैक्टर लेके it actually takes away and keeps it in a separate folder. Yeah, thank you Mohit. So अब मशीन लर्निंग के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जो डेटा साइंस मशीन लर्निंग बहुत है सेम एक्चुअली. सो मशीन लर्निंग के बहुत सारे पार्ट्स हैं कि एक है सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग इज लाइक जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे को हम सिखाते हैं कि ये ऑरेंज है, ये एप्पल है, तो ऑरेंज एप्पल की फोटोग्राफ्स देखता है बच्चा, वीडियो देखता है, टीवी में देखता है, कभी सामने देखता है, देन उसको समझ में आ जाता है कि ऑरेंज इज एन एंटिटी. ऑरेंज वो चीज है जिसका कलर ऑरेंज है और वो स्फेरिकल है. He won't say orange to anything which is colored orange and कहीं पे orange paint कर दिया मैंने तो उसको orange fruit उसको नहीं बोलेगा वो. तो बच्चे को हम सिखाते हैं, वो समझता है, फिर अपने दिमाग में एक मॉडल बना लेता है उसका कि अच्छा ऑरेंज ऐसा दिखता है. तो ये सुपरवाइज लर्निंग है. मशीन्स में हम सुपरवाइज लर्निंग इसको बोलते हैं जब मशीन को हम खुद बताते हैं कि डेटा देखो ऐसा दिखता है, जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं. मशीन को हम 6 फोटोग्राफ देंगे और हर फोटोग्राफ के सामने लिख देंगे कि ये एप्पल है. इसी तरीके से हर कपकेक की फोटो के सामने लिख देंगे कि दीज आर कपकेक्स, कपकेक्स, कपकेक 1, कपकेक 2, कपकेक 3. तो अब प्रॉब्लम क्या होती है मशीन्स के लिए कि जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग थी मशीन लर्निंग और एआई से पहले की, उसको दिक्कत क्या होती थी कि हर एक एप्पल के लिए आपको सॉफ्टवेयर में कोड लिखना पड़ेगा, हर एक एप्पल के लिए. सो इमेजिन देयर आर बिलियंस ऑफ एप्पल्स और हर दिन कोई नया एप्पल आ रहा है, किसी एप्पल में कहीं कीड़ा लग गया, उस कीड़े को आपने कोड नहीं किया, या किसी एप्पल में एक ग्रीन कलर और आ गया, एक पिक्सल आ गया छोटा सा ग्रीन कलर एक्स्ट्रा जो आपने कोड नहीं किया था. तो जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग थी आज से पहले 10 साल पहले जो चल रही थी, वो उसको एप्पल समझ ही नहीं पाएगी, वो बोल ही नहीं पाएगी कि ये एप्पल नहीं है, आई एम सॉरी दिस इज नॉट एप्पल. देन यू हैव टू अगेन राइट अ कोड फॉर एप्पल. सो दिस इज नॉट इंटेलिजेंस, ये रोट लर्निंग था. तो अभी तक आज से 10 साल पहले जो प्रोग्रामिंग में हम सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम्स, दे वर रोट लर्निंग. वो रट्टेबाजी थी कि अच्छा ये हो गया तो ये कर लेंगे, ये हो गया तो ये कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर हो गया तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ फेल हुआ तो वहां चले जाऊंगा. इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती है वो ये होती है. तो इसमें क्या है कि डेटा से लर्न करना. तो डेटा से लर्न करना क्या होता है कि अब मशीन को हमने खुद बता दी कि भाई ये एप्पल्स है, ये कपकेक्स है, तो मशीन उनको देखता है. बहुत सारी फोटोग्राफ्स देनी होंगे, छोटी मतलब ये 5-6 फोटोग्राफ्स में नहीं होगा. आई थिंक जितना कॉम्प्लेक्सिटी होगा चीजों में और जितनी सिंपल होंगी उतना कम एग्जांपल में हो जाएगा, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होंगी उतनी ज्यादा हमें मशीन को एग्जांपल्स दिखाने पड़ेंगे. Well, if I can put it in a more simplified form, पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी अर्ली प्रोग्रामिंग में, अगर if there are 6 apples, तो the 6 apples would have different characteristics and we need to write a code for different 6 apples. Exactly. Now the systems have increased, they have increased, the intelligence of the system have increased to a level that the common factor would be recognized as a machine as an apple. That will be applicable to if it recognizes the first as an apple, that would be applicable to next 5 figures also as a single apple. So the machine can actually recognize 6 apples altogether as an apple of category. But otherwise, before that, we need to
find out we need to actually feed data for 6 different apples. Exactly. Yeah. तो हम ह्यूमंस भी ऐसे ही सीखते हैं ना, हम भी ऐसे ही सीखते हैं और हम भी ऐसे ही काम करते हैं. हम ऐसा नहीं बोलते कि कोई नया एप्पल आ गया तो उसको बोलते कि नहीं मैं तो एप्पल नहीं समझता इसको. तो यही इंटेलिजेंस है. दिस इज द इंटेलिजेंस व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द deluge ऑफ डेटा दैट इज केम इन सिंस लास्ट 10 years. सो एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए 4 तरीके के टोकरी में फ्रूट्स है मेरे पास. वाटरमेलन है, ग्रेप्स हैं ग्रीन कलर के, चेरीज हैं और एप्पल है. तो इसमें से मैं आपको बोलूंगा कि भाई इन दोनों को सेपरेट करिए. तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल होगा कि भाई कलर के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, है ना. तो कलर के बेसिस पे इजीली ये ग्रेप्स और मेलन्स अलग हो गए एंड एप्पल्स एंड चेरीज अलग हो गई. अब मैं बोलूंगा कि यार कुछ थोड़ा इंटेलिजेंस और चाहिए मुझे, थोड़ी और इसमें टेक्निक लगाते हैं कैसे इसको और सेपरेट कर सकते हैं फाइन फर्दर एप्पल्स और इनको. तो अब एक साइज कैरेक्टरिस्ट हो गया, है ना. तो हम देखेंगे कि वाटरमेलन सबसे बड़े हैं, देन सबसे स्मॉलेस्ट जो होंगी चेरीज होंगी. तो सबसे बड़ा जो है और वो ग्रीन कलर का है, दैट विल बी वाटरमेलन. सो दीज आर डायमेंशंस जो हम लोग मैथ्स में प्लॉटिंग करते थे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे साइज हो जाएगी हमारी, वाई एक्सिस पे नीचे कलर हो जाएगा. तो उसके उसी के हिसाब पे हम इनको प्लॉटिंग कर देंगे. सो दीज आर वेरी बेसिक प्लॉट फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन थिंग्स. So that was supervised learning, right? दैट वाज सुपरवाइज्ड लर्निंग. तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के इंट्रोडक्शन पे टाइम में आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा. कभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग सब, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाए, राइट. कोई ऐसा तो नहीं करता कि अनएक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाए, है ना. हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर है उसके पास जाए. तो ये एक्सपीरियंस है क्या? ये एक्सपीरियंस ये है कि मान लीजिए किसी बंदे को डायबिटीज है, तो वो कोशिश करेगा कि उस डॉक्टर के पास जाऊं जिसने बहुत सारे केसेस डायबिटीज के देख रखे हैं और उसने हर एज ग्रुप के भी देख रखे हैं डायबिटीज की. भाई 10 साल के बच्चे का, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के. तो ये जो एक्सपीरियंस है वो उसके दिमाग में एक मॉडल बन चुका है. अब हम सोचते नहीं, हम कोई भी काम करते हैं ना लाइफ में, वी आर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लेकिन हम इतने उस चीज में हमारे लिए वो चीजें इतनी कॉमन हो गई है ना, कॉमन प्लेस हो गया हमारे लिए कि हम सोचते नहीं कि वी आर एक्चुअली डूइंग लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन हेड. तो वो बंदा क्या करता है, आपसे पूछता है कि आपने क्या, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, आपके मामा दादा या पापा किसी को फैमिली में तो नहीं था, आप कितना शुगर कंज्यूम करते हैं, आपकी डाइट क्या है, ये सारे क्वेश्चंस पूछता है. इन क्वेश्चन के बेसिस पे वो एक आपको रिजल्ट देता है कि अच्छा यू हैव डायबिटीज और यू डोंट हैव डायबिटीज. सो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसने उतना ज्यादा डेटा देख रखा है. ऐसी मशीन्स के साथ होता है, जितना ज्यादा हम डेटा दिखाएंगे उसको, उतनी मशीन्स की पावर ज्यादा अच्छी होगी, उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा. या मोहित, यू आर सेइंग समथिंग? The same is like, when we are climbing up the stairs, हमें स्टेज का हाइट नहीं पता कितना है, कि 15 कितना भी है उसका, बट हमारा माइंड कैलकुलेट कर लेता है कि हमें कितना फोर्स लगाना है कि उसका अपना टू पिक अप आवर लेग. So we continue doing it till we actually reach a certain amount of flow. So this calculation is actually done in our brains without knowing it. So it's the same thing what Rahul is telling you about is unsupervised learning that our brain is doing. We actually are doing in machine learning. या सो अनसुपरवाइज लर्निंग में अब क्या होता है कि सुपरवाइज में तो हमने मशीन को ट्रेन किया है, अनसुपरवाइज में हम क्या करते हैं कि मशीन को कुछ भी नहीं पता है. सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इतने सारे डेटा को किसी बंदे को मैनुअली बैठ के लिखना होता है. 1000 एप्पल्स की फोटोग्राफ आप किसी को देंगे बिठा के, वो 1000 फोटोग्राफ्स एप्पल की गूगल से निकालेगा, उनको एक फोल्डर में डालेगा, हर एप्पल के फोल्डर में एप्पल रहेंगे, ऑरेंज के फोल्डर में ऑरेंज रहेंगे. तो ये बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है. अभी तो मैं आपको इतना सिंपल टास्क बता रहा हूँ कि एप्पल और ऑरेंज में डिफरेंशिएट करना. इसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बंदे हायर करने पड़ेंगे, डेटा लेबलिंग करनी पड़ेगी, 2 फोल्डर अलग बना के उसमें डेटा डालो. तो इससे बचने के लिए एक तरीका क्या है कि अनसुपरवाइज लर्निंग. अनसुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं कि मशीन को हम खुला छोड़ देते हैं, वी गिव इट ऑल द फ्रीडम. अब मशीन को हम बोलते हैं कि भाई आप ये आपके पास से डेटा है, ये टोकरी पड़ी है फलों की, इसमें से आप देखो आप किस किस चीजों को बराबर रख सकते हो. तो मशीन ने अपनी जुगत लगाती, बेस्ड ऑन इट्स अंडरस्टैंडिंग इट ट्राइज टू क्लासिफाई देम. वो देखती है कि अच्छा कलर वाली चीजें हैं तो वो रेड कलर को एक साथ रख देगी और येलो को एक साथ रख देगी. तो हमने अगर मशीन को बोला कि मुझे डेटा में ना, इस डेटा में 2 क्लस्टर बताओ, तो रेड, एप्पल और ऑरेंज इन सब चीजों को एक साथ कर देगी, येलो को अलग कर देगी. हम बोलेंगे 3 क्लस्टर निकालो, तो वो क्या करेगी, रेड को अलग करेगी, थोड़े से रेडिश ऑरेंज है उनको अलग कर देगी, एप्पल बनाना को अलग कर देगी. तो ये अनसुपरवाइज है. इससे थोड़ा सा टाइम हमारा, मतलब काफी टाइम हमारा बच जाता है. तो इसके और एडवांस टेक्निक है, वो कभी बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. या मोहित, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
अब जैसे कि गूगल पे हम लोग सर्च मारते हैं, राइट, वी सर्च ऑन गूगल, लेट्स से आपके सामने कीबोर्ड पड़ा होगा भी, आप देख सकते हैं कि WIRED आपको सर्च मारना है, तो आई के साथ ओ की भी है, तो आपने गलती से यू प्रेस्ड ओ, यू रोट ओ वर्ड, तो गूगल ऑटो करेक्ट ही आपको सजेस्ट कर देता है कि नहीं, वर्ड एक्चुअली वर्ड तो कोई सेंटेंस भी नहीं है एक तो डिक्शनरी में, तो बेस्ड ऑन दैट प्रोबेबिलिटी इट सेज कि आपने गलत लिखा है, और मेरे ख्याल से आपने शायद वायर्ड कोशिश की होगी। क्यों, उसको कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके पास बिलियंस ऑफ सर्च हो रही है रोज, उसको पता है कि भाई आई के साथ जो गलत की दबाता है बंदा, वो ओ के या यू हो सकती है, आप अपने कीपैड पे दे सकते हैं। अगल बगल वाली कीज है, आप 8 और 9 दबा सकते हैं, ऐसी डब्ल्यू के साथ आप 2 3 ओ डी ये सब डाल सकते हैं। तो मशीन अपने आप समझ जाती है कि भाई एक तो पहली बात ये वर्ड ही नहीं है, दूसरा ये कि आई लिखने की जगह वो बंदा शायद ओ गलती से लिख दिया, तो उसको वायर्ड सजेस्ट कर देता है। तो ये ऑटो करेक्ट है गूगल का। मोहित नेक्स्ट प्लीज। अब मैं बहुत ही सिंपल जनरल एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैथमेटिकली सोचते हैं करते हैं, लेकिन हमको डर लगता है कि भाई मशीन लर्निंग में मैथ्स है या कुछ है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैट्स है, सब चीजें, ये सब बहुत ही बेसिक चीज है, कोई ऐसा एडवांस चीज नहीं होती है। तो मेरी जेब में मान लीजिए 100 रुपए का नोट है, ठीक है, अब मुझे लंच भी करना है, मुझे चॉकलेट खरीदनी है मेरे भाई या कजन के लिए, मान लीजिए मत बच्चे के लिए, मुझे कुछ सब्जियां भी खरीदनी है, मम्मी का फोन है, अब मुझे फिर मेट्रो पकड़ के मुझे घर भी जाना है। अब ये डिसीजन ट्री है, ठीक है। अब 100 रुपए के अंदर द कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट मैंने फिक्स मेरे पास है कि यार मुझे ये सारे काम 100 रुपए के अंदर करने हैं, मुझे सारी चीजें करनी, तो मैं ऑप्टिमाइजेशन करूंगा। ये ऑप्टिमाइजेशन होता है। मैं वो चॉकलेट नहीं लूंगा जो कि भाई लिंट की चॉकलेट है जो 250-300 रुपए की मिलती है, मैं डेयरी मिल्क ले लूंगा 10 रुपए की। मैं अपना लंच खा लिया कहीं रोड स्टॉल पे, कहीं खा लिया मैंने, वेजिटेबल्स भी खरीद ली, एंड देन मैं मेट्रो भी पकड़ ली, मेरे पास पैसे भी बच गए इतने। तो ये कैलकुलेशन मैं करते रहता हूँ दिमाग में। हम किसी से बात भी करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो भी हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चलते रहती है। ये प्रोबेबिलिटी ही तो है कि किस चीज की संभावना कितनी है, अगर मैं ये कर देता हूँ तो आगे क्या होगा। ये प्रोबेबिलिटी, हम अपने दिमाग में प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स दिन भर करते रहते हैं, हर टाइम करते रहते हैं, बट वो नंबर्स आ जाते हैं तो वी गेट बिट स्कैर्ड। अब नंबर्स का मैं आपको मैजिक बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये नंबर्स हैं तो इनका क्या फायदा है, मल्टीप्लाई, डेसिमल, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग आके। तो आप देखेंगे यहाँ पे 9 इंटू 9 81 है, 9 5 से 45 है, ठीक है, अच्छी बात है। तो रिजल्ट अब देखेंगे कि जो 9 इंटू 9 का रिजल्ट है वो दोनों ही नंबर से, जो 9 और 9 है उससे बड़ा है। सिमिलरली 9 इंटू 5 45 है, तो 45 इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ 9 एंड 5। ओके, ऑलराइट, आप करके देख सकते हैं, कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे वो रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन। लेकिन How can you अगर हम explain this? Can you explain this या point to me? या एक्सप्लेनिंग या सो लेकिन जब हम डेसिमल पे आते हैं, व्हेन वी कम टू डेसिमल नंबर्स, इफ यू मल्टीप्लाई 0.9 by 0.9, what do you see? 0.81. So 0.81 is smaller than 0.9 and 0.9, right? You're getting it? Now 0.9 into 0.5, 0.45. 0.45 is smaller than both 0.5 and 0.9. So this is magic. इसी मैजिक को यूज करके हम डेटा साइंस में यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्यों यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी में, अब ये मैंने स्लाइड क्यों दिखाई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में कैलकुलेट होती है ना। अब वो क्यों होती है? इसीलिए ताकि हम ये मैजिकल कैलकुलेशन कर सके, ताकि हम मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आज मैं रेलवे स्टेशन पे गया और वहां पे ओबामा आ गया। रेलवे स्टेशन पे जाना एक एक प्रोबेबिलिटी है, देन ओबामा का वहां पे मिल जाना मुझे, यहाँ पे ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है, ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ओबामा भी आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि ओबामा भाई इंडिया में आता कितनी बार है, लेट्स से ओबामा साल में या 2 साल में एक बार आता है, लेकिन मैं वहां रोज जाता हूँ रेलवे स्टेशन पे, तो मेरा जो है प्रोबेबिलिटी वहां जाने का ओबामा की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हुआ तो बहुत ही कम हो जाएगा, मेरा और ओबामा का मिलना और ही कम हो जाएगा। तो ये नंबर आप देख रहे हैं ना, डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी संभावना और कम हो जाती है। मतलब दो चीजों का एक साथ होना, मतलब किसी भी साइमल्टेनियस इवेंट्स का एक साथ होना, वो कम है, उसकी संभावना कम है, इसीलिए हम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हम डेसिमल नंबर यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में, ताकि उनकी संभावना हम कम दिखा सके। तो जो हम चीज दिमाग में सोचते हैं, जो हम हमारे लिए स्वाभाविक चीजें हैं, मतलब बहुत ही ऑब्वियस चीजें हैं, वो हम नंबर्स में ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर्स का मैजिक है, क्यों डेसिमल नंबर यूज करना है, कहाँ पे डेसिमल यूज करना है ये। तो अब एक प्रोबेबिलिटी का एक और बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। वेदर स्टेशन और रिपोर्ट्स हम लोग देखते ही है। मान लीजिए सिंपल सा चार्ट है आपके पास, ट्यूसडे जुलाई 19 को बारिश हुई, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अगले दिन वेडनेसडे को भी हो गई, थर्सडे को नहीं, फ्राइडे को नहीं, सैटरडे को नहीं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि संडे को भी बारिश होगी? आप सिंपल बोलोगे कि भाई सैटरडे को नहीं हुई, 3 दिन से हो ही नहीं रही, तो संडे को तो बहुत ही कम संभावना है कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब
हाउ मेनी, अब इसको और एडवांस निकालना है, जो वेदर स्टेशन है वो इतनी सिंपल कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो ये भी देखते हैं, ये एक डायमेंशन पे मैंने बताया आपको, एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन पे, So उनके पास क्या डेटा होता है। let me ask members if they can type on the Yeah, sure. chat box as yes or no कि संडे को बारिश होगी कि नहीं होगी. Yes as in होगी या नहीं होगी. Let's see. So we have the first answer no. Rahul Gulati says no. Okay. Tarun says no. दिलीप जी says no. तो दिलीप जी ने कह दिया फिर तो no है. Okay. Okay. Rahul, you can go ahead. Yeah. Yeah. So ये तो एक ही इंफॉर्मेशन थी. हम कोई भी बिजनेस में भी डिसीजन करते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि यार अच्छा इसमें ये मिलेगा नहीं मिलेगा, बस मैं डिसीजन ले लिया. हम और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो मार्केट रिसर्च की जाती है कि भाई और इंफॉर्मेशन ला, ये प्रोडक्ट बिका था, इसके इस टाइप के कैसे प्रोडक्ट है, क्या हुआ था, कि इतना प्राइस रखूं, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके मैं अराइव करता हूँ कि बेचूं या नहीं बेचूं, यस और नो, उस चीज को अप्रोच करूं या नहीं करूं, उस क्लाइंट के पास जाऊं या नहीं जाऊं. ठीक है, ये सब चीजें तो ये दिमाग में कैलकुलेशन हम लोग करते रहते हैं. दिस इज प्रोबेबिलिटी, वेरी बेसिक. तो नेक्स्ट पे जाते हैं मोहित. इसको भी स्किप कर सकते हैं, मैंने बता दिया है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. अब मान लीजिए एक स्टबन गाय, ये भी बहुत बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बहुत ही स्टबन गाय है. ठीक है, अब देयर इज उस बंदे के एक टाउन में वो रहता है, वो बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें, 8-10 लोग रहते हैं, बहुत हाइपोथेटिकल टाउन एज्यूम करते हैं. वो बोलता है कि भाई उस टाउन के बाहर कोई भी फूड नहीं है. ठीक है, द टाउन फेसेस नाउ द वर्स्ट ड्रॉट ऑफ द सेंचुरी बट द स्टबन गाय हैज 100% फर्म बिलीव कि नहीं भाई उस टाउन के बाहर कोई फूड नहीं है. वो ये मान के बैठा हुआ है एकदम 100%. उस टाउन द के स्टबन गाय, टाउन के बाहर क्या नहीं है? उस टाउन के बाहर फूड नहीं है, वो मान के बैठा कि भाई इतनी, हाँ, इसलिए इस दायरे के बाहर कुछ नहीं है, दुनिया है ही नहीं, खाना भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. तो ड्रॉट आता है वहां पे, तो वो क्या करता है, वो अपनी फर्म बिलीफ पे टिका हुआ है. तो अब वो क्या होगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा बंदा. ठीक है, तो डू यू थिंक वाज ही ह्यूमन, रियली ह्यूमन एट ऑल, जो कि 100% जिसने मान लिया कि इस टाउन के बाहर है ही नहीं कुछ. आई वुड से ही इज नॉट ह्यूमन. वो ह्यूमन हो ही नहीं सकता. ही कुड बी अ मशीन और समथिंग एल्स. ही इज नॉन लिविंग थिंग. टू अर ही इज ह्यूमन. तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी चीज की फुल जीरो हो ही नहीं सकती, ना प्रोबेबिलिटी किसी चीज की फुल 100% संभावना हो सकती है. अगर मैं बोलूं कि लाल शेर देखा आपने, तो आप बोलोगे यार लाल शेर हो ही नहीं सकता भाई, जीरो प्रोबेबिलिटी इसकी. लेकिन मैं बोलूंगा लाल शेर नहीं है, अर्थ पे नहीं है, गिवन द प्लैनेट अर्थ, जो हमने लिमिटेड अर्थ देखा यूनिवर्स का. बट लाल शेर कुड बी ऑन अनदर प्लैनेट विच वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड. यूनिवर्स तो है ना भी. तो प्रोबेबिलिटी हर चीज की है, हमने देखा ही क्या है अभी. तो देर इज, हम किसी भी चीज को 0% नहीं बोल सकते कि भाई ये 0% है मेरे हिसाब से कि चीज नहीं होगी, कल बारिश नहीं होगी, या 100% है कि बारिश नहीं होगी. हम बोलते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी देते हैं बीच में, 0 और 1 के बीच में. There's another example, Rahul. Suppose I'm wearing this shirt as blue color, right? The same color may, as in view, will not be in blue in your eyes. Yeah. Because you have been told this color is blue since childhood, so you will call it blue. Maybe in your eyes it could be red. That's a philosophical question that you are going to. अब इस पे बहुत लंबी बहस होगी. ठीक है, ठीक है, इसको बाद में ये इस पे बात करूंगा मैं. ठीक है, तो अब एक रिकमेंडर सिस्टम मैं आपको बताता हूँ. हम लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट पे हम लोग, मतलब जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है हम लोग जाते हैं उस पे, राइट. तो हम लोग देखते हैं कि भाई मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया या कुछ किया, तो वो बताता है कि भाई इस बंदे ने ये खरीदा था तो उसने ये भी खरीदा था. किसी ने ब्रेकिंग बैड देखा है तो उसने ये भी सीरियल देखा है, वो नेटफ्लिक्स सजेस्ट करता है आपको. तो ये काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करता है, मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं, रोज जा रहे हैं आप, तो दैट शॉपकीपर सीज यू एवरी डे दैट यू आर परचेजिंग ब्रेड. सो ही सीज यू एवरी डे दैट यू आर परचेजिंग ब्रेड. 3-4 बार परचेज करते हैं आप. तो 5वें-6वें दिन बोलेगा कि भाई साहब आप ब्रेड ले रहे हैं, आप ये भी ले लीजिए, अंडा ले लीजिए, आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा मैं. या जो ब्रेड, उसको खुद को कॉमन सेंस में आएगा कि यार जो ब्रेड लेके जाता है वो बटर भी लेता होगा ना, तो मैं इसको बटर क्यों नहीं देता हूँ. तो दुकान वाली बोलेगी भाई साहब बटर भी ले लीजिए, 1 रुपया डिस्काउंट दे दूंगा. ये रिकमेंडेड सिस्टम ही है. कैसे बना, क्योंकि डेटा आया, डेटा से क्या है, एक्सपीरियंस आया, एक्सपीरियंस से क्या है कि मैंने सजेशन दिया. यही है बस रिकमेंडेड सिस्टम. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई 3 फ्रेंड्स हैं, अमित, सुमित, गौरव. उन्होंने 2 सीरियल देखे, गेम ऑफ थ्रोन, ब्रेकिंग बैड. अमित ने दोनों को 5 स्टार दिया, भाई अच्छी बात है. गौरव को गेम ऑफ थ्रोन पसंद नहीं आया, ब्रेकिंग बैड को 5 दे दिया उसने. सुमित ने भी ब्रेकिंग बैड पसंद किया, जीओटी नहीं पसंद किया. तो इसको प्लॉट करते हैं. आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं कि भाई ये प्लॉटिंग क्यों करते हैं, एक्स वाई एक्सिस क्या मतलब है, क्यों प्लॉट कर रहे हैं, क्यों मैथ्स पढ़ रहे हैं, पर्पस क्या है. तो जीओटी को मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, उस पे 5 पॉइंट्स है, 1 से 5 तक रेटिंग है. बीबी को नीचे वाला मान लेते हैं, 1 से 5 तक है.
तो अब इस पे हम प्लॉट करेंगे अमित को, तो अमित को आप देखेंगे 5-5, अमित सबसे ऊपर जाएगा, गौरव थोड़ा सा नीचे आएगा, उसने 5 दिया और 2 दिया है, सुमित 4 और 1 पे यहाँ पे आएगा। अब मोहित नेक्स्ट पे जाते हैं जरा, मैं इसको क्विकली बताऊंगा आपको। अब मान लीजिए एक बंदा एक्स आता है, अपने लेफ्ट साइड में देखिए एक नया बंदा आया एक्स, नया बंदा मतलब एक नया यूजर आ गया अमेज़न पे। वो यूजर ने जीओटी को रेटिंग दी 4, नेटफ्लिक्स पे आ गए मान लीजिए, उससे हम पूछते हैं कि भाई आपने जीओटी बीबी देख लिया, ठीक है, उसने रेटिंग दी, जीओटी को 4 दे दी और बीबी को उसने 2 दे दी। तो अब हम देखेंगे कि उससे सबसे पास बंदा कौन है, उससे मिलता जुलता कौन है, तो उसी की वो जो पसंद करता है ना उसकी सारी रिकमेंडेशन हम एक्स बंदे को दे देंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ देखिए अमित से इसका डिस्टेंस कितना है, 3 और 1 4। अब आप राइट साइड में ये सुमित से डिस्टेंस कितना है, 3 और 2 5। तो सुमित से ज्यादा दूर है, अमित से पास है। हमें ग्राफ पे प्लॉट करके दिख रहा है, हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए प्लॉटिंग जरूरी होती है। प्लॉटिंग हम डेटा साइंस में इसलिए करते हैं कि कई चीजें ना प्लॉट करने से दिख जाती है। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आंखों को दिखता है सामने वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है समझने में। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा पास ये किसके है, अमित के ज्यादा पास है। तो हम अमित की सारी रिकमेंडेशन, एक्स जो नया बंदा है ना उसको सारी रिकमेंडेशन दे देंगे अमित की कि भाई आप अमित के जैसे सिमिलर हो। हम अमित का नाम नहीं बताएंगे, बोलेंगे कि आपके जैसा यूजर था, उसने ये पसंद किया, तो आपको शायद ये कौन सी मूवीज है, एवटार, ये सब ये भी पसंद आएंगे, आप ये भी देख लो, ठीक है, जो उसने देखी होंगी अमित। तो ये रिकमेंडेड सिस्टम है, ये आप देखिए बहुत सिंपल सा है। अब वो एडवांस है लेकिन बेसिकली ऐसी ही है, इंजन ऐसी काम करता है। बहुत एडवांस एल्गोरिथम यूज होती है बट बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज। अब एक लीनियर सेपरेटर की बात करते हैं। Rahul, can you explain what is algorithm? या एल्गोरिथम इज अ स्टेप, इज अ जैसे एल्गोरिथम क्या है, जैसे मैं आपको बोलूं कि चाय बनाना है, तो चाय बनाना हमारे लिए इतना स्वाभाविक चीज है कि हम सोचते ही नहीं कि हम यार चाय बनाने कोई चीज भी होगी, कोई उसमें एफर्ट लगेगा। बट मैं आपको बोलूंगा कि रोबोट को बताओ कि हाउ विल यू मेक टी, तो आपको सारे स्टेप्स बताने होंगे कि फर्स्ट गो एंड फेच मिल्क, मिल्क में से इतना डालना है, रेशियो इतना होना चाहिए, चाय का इतना होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, इतना बॉइलिंग टेम्परेचर, इतना इतना बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस बॉइलिंग पॉइंट के फिर रोबोट बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रोबोट पूछेगा कि कौन सी मार्केट जाऊं, कौन सा दूध लाऊं, स्किम्ड मिल्क लाऊं, टोन्ड मिल्क लाऊं। तो आप देख रहे हैं हमारे लिए जो चीज बहुत सिंपल है चाय बनाना, अगर वो किसी रोबोट को हमें समझाना है तो उसको पूरे वर्ल्ड का हमें वो एक एक क्वेश्चन ऐड हो के ना वो पूरी दुनिया की जानकारी ले लेगा हमसे कि रुपया क्या होता है, पैसा क्या होता है, मैं कितने पैसे मिलूं, कितना पैसा सस्ता है, कितना महंगा है। वो इकोनॉमिक, सोशल, हिस्ट्री वो आपसे के साथ बैठ गया किसी दिन रोबोट ऐसा, तो आपकी पूरी जान ले ली उसने, इतनी इंफॉर्मेशन ले लेगा वो एक चाय बनाने के लिए। तो एल्गोरिथम ये है कि चीजों को कैसे स्टेप बाय स्टेप हम करें, एक फ्लो चार्ट होता है, जैसे कि भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो उसी को एल्गोरिथम बोला जाता है। या सो मोहित, सो ये वाला स्लाइड में क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप लोग खुद सोचिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए ऊपर 2 ग्रे इमेज दिख रही है आपको, लेफ्ट साइड में 2 ग्रे बॉल्स हैं, राइट साइड में 2 ग्रे बॉल्स हैं। अब मैं बोलूं कि ब्लैक एंड व्हाइट मैंने इमेज दी आपको, मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा है, मैं बोलूं कि आप इनमें डिफरेंशिएट करिए कि दोनों लेफ्ट वाली इमेज किसकी, राइट वाली किसकी। आप बोलेंगे यार भाई दोनों तो ग्रे ही लग रही है, हाउ विल आई डिफरेंशिएट, बोथ आर ग्रे, बोथ आर सर्कुलर, बोथ आर ग्रे। तो अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कम है आपके पास, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। अब आप बोलोगे मेरे से कि भाई ये नहीं हो रहा, लेट गिव मी वन मोर इन्फॉर्मेशन, वन मोर हिंट और वन मोर क्लू और वन मोर डायमेंशन। तो ये डायमेंशन होता है, हम डायमेंशन की बातें करते हैं ना मैथ्स में, ये डायमेंशन होता है, इन्फॉर्मेशन इज डायमेंशन, दैट्स इट, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। तो आप बोलोगे कि एक इन्फॉर्मेशन भाई और दे दे मेरे को थोड़ी सी, या डायमेंशन एक और दे दे, तो मैं बोलूंगा कि भाई वो रेड है और ये ऑरेंज है। तो उसके मोहित एक पीछे स्लाइड पे जाना, एक मिनट, एक मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ जल्दी से, आई थिंक, हाँ। तो आप ये राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे रेड कलर है, जो ऐसी वाली एक्सिस पे उस पे रेड है, नीचे एकदम ऑरेंज है, ऊपर रेड है। तो हम ऑरेंज से रेड पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि नीचे सबसे ऑरेंज कलर है, ऊपर रेड है। ये वाली एक्सिस है, उस पे क्या है, यहाँ से जो लास्ट में जा रहे हैं हम लोग वो सर्कल है, एकदम सर्कुलर शेप्स है। तो ऑरेंज और एप्पल दोनों सर्कुलर है, तो दोनों एक्सिस में उधर रहेंगे। ऑरेंज क्योंकि ऑरेंज है तो नीचे आएगा इस साइड से, और रेड रेड है तो ऊपर हो गया। अब मैं आपको बोलूंगा कि दोनों के बीच में एक ऐसी लाइन बनाओ कि वो लाइन के ऊपर जो एप्पल है, लाइन के नीचे ऑरेंज है। तो आप मेरे को ये बताइए कि कौन सी लाइन बेस्ट है, ग्रीन लाइन बेस्ट है, विच लाइन इज द बेस्ट सेपरेटिंग बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज, इज इट ग्रीन, इज इट ब्लू, इज इट ब्लैक? वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन। Rahul, you need to repeat the question actually. Yeah. So let's say red dots are apples. Okay. Orange dots are oranges. Orange as in the orange that we eat. So let's say I have drawn 3 lines. Black line,
blue line and green line. Which line do you think is the best separating line between apple and oranges? मतलब इस लाइन के ऊपर एप्पल होगा, इसके नीचे ऑरेंज होगा, तो 3 लाइन है. Which line is the best separating line? Members, okay, we have answers in the chat box as so. Inderjeet, Yeah, somebody said. Inderjeet says blue. Rahul says black. DH says green. Arsh says blue. Yeah, so good. So मैं आपको बताना चाहूंगा ये सबसे जो बेस्ट लाइन है, इट इज द ब्लू वन. अब उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको क्यों. I told you, Dilip ji says blue. It's blue, man. तो ब्लू इसलिए है क्योंकि ब्लू से ना सबका डिस्टेंस, जो एप्पल का डिस्टेंस है बहुत ज्यादा दूर है और ऑरेंज का भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है. तो मान लीजिए अब वो क्यों है, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बेंस ब्लू में बहुत ज्यादा हो गई. तो गलती से कोई नया एप्पल आया जो कि ना हल्का सा ऑरेंज टिंट है उसमें, तो अगर वो थोड़ा नीचे भी आएगा ना ऑरेंज की तरफ, तो उसको भी मशीन बोलेगी कि नहीं एप्पल है. अब बात समझे, शॉक एब्जॉर्बेंस होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होता है. तो ये रटने वाला सिस्टम नहीं हमारा. जो ग्रीन वाली लाइन है वो ऑरेंज के इतनी पास है कि एक भी ऑरेंज गलती से आया ना जिसमें रेड कलर हुआ तो ऊपर टप्पा खा के चला जाएगा. वो उसको मशीन बोलेगी नहीं भाई, ग्रीन लाइन वाली मशीन बोलेगी नहीं ये तो एप्पल है, उस ऑरेंज को एप्पल बोल देगी. तो शॉक एब्जॉर्बेंस ब्लू वाली में बहुत ज्यादा है. तो या Guys, what Rahul is actually trying to do here is actually trying to make you understand the concepts. Then when you are gone through the concepts more on a more clear front, will actually help you tell in the later part how you can use into business, as in general business, in your business decisions, and if you can go and venture out for certain devices which can help you out. So I'm coming to a business case scenario in next slide maybe. Yeah, so अब होता है क्या कि पॉलिटिकल वो होते हैं, मतलब एनालिसिस होते हैं. लोग बोलते हैं कि भाई ट्रम्प के फेवर में इतने लोग ट्वीट कर रहे हैं या हिलरी के इतने कर रहे हैं, और इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, क्या इंटेंट क्या है, उनका पर्पस क्या है ट्वीट में, या फेसबुक पे कोई कमेंट लिख रहा है उसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है, उसकी जिस्ट क्या है. तो कोई बंदा करोड़ों लाखों 100 करोड़ कमेंट्स रोज ड्रॉप हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, ओबामा के बारे में, ट्रम्प के बारे में. कौन बैठ के उसको पढ़ेगा, कौन बैठ के बताएगा कि इतने पॉजिटिव थे इतने नेगेटिव थे, कौन बैठ के बताएगा कि इस ये कमेंट किसी डैम के टूटने के बारे में था, कौन बताएगा कि ये कमेंट नाइकी के शू के बारे में था जिसमें की बात हुई है कि मेरा शू लेस खराब हो गया, कौन ये बताएगा कि ये कमेंट जो स्पाइस जेट या किसी एयरलाइन के बारे में लिखा है किसी बंदे ने, उसमें उसने ये बोला है कि स्पाइस जेट बहुत बेकार है, मेरा बैगेज गुम हो गया, कौन मेरी हेल्प करेगा. तो कौन करेगा ये, इतने कमेंट्स करोड़ों लाखों आ रहे हैं, कैसे होगा ये, है ना. तो बेसिक चीज है कि एक जो वेरी बेसिक सेंटिमेंट एनालिसिस काम करता है कैसे कि दिस मूवी वाज गुड, तो हम देखेंगे अच्छा गुड वर्ड है तो हम बोलेंगे अच्छा भाई ठीक है ये सेंटिमेंट गुड हो गया, तो ये एक बेसिक सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया. लेकिन मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि दिस मूवी और दिस एक्टर वाज बैड एस, तो इसमें तो बैड वर्ड आ गया, तो ये तो गंदा होना चाहिए. बट बैड एस का मतलब होता है, bad is a different meaning, right? We say it's a slang which has positive connotation, right? तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए पुराने कंटेक्स्ट भी होने चाहिए कि बंदे ने पहले सेंटेंस में क्या बोला फिर उसने क्या बोला, तो पूरा हमें पता होना चाहिए कि उसने इस सेंटेंस में बोला इस सेंटेंस में बोला. तो अच्छा अब इसकी बात क्या मतलब है, मतलब हम किसी की बात बीच में जाके सुने तो हमें कंटेक्स्ट नहीं पता चलता कि भाई क्यों बात हो रही है, तो हम कुछ भी बोल देते हैं, अच्छा यार तूने ऐसे क्यों बोल दिया मेरे बारे में, क्यों बोल दिया, वो बोलता है भाई पूरी बात तो सुन ले. तो कंटेक्स्ट होना चाहिए, मशीन को भी हम कंटेक्स्ट देते हैं तभी हम एक सेंटीमेंट पे अराइव करते हैं. वो कंटेक्स्ट आता कहाँ से, हम एक चार्ट जनरेट करते हैं. बहुत ही बेसिक सेंटीमेंट एनालिसिस बता रहा हूँ, ये यूज नहीं होता कहीं पे भी, ये आज से 20 साल 25 साल पहले का है, ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि जो लाइक वाले कमेंट्स हैं उसमें किसी वर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या. आप देखिए इस टेबल में कि ग्रेट जो है ना 0.003 टाइम्स लाइक वाले कमेंट में यूज होता है, और वो 0.007 मतलब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि वो डिसलाइक वाले ट्वीट में यूज हुआ होगा, ठीक है. हाइप तो वेरी कॉमन सेंस है कि हाइप हम किसी चीज के लिए नेगेटिव कोनोटेशन भी बोलते हैं. तो आप ये चार्ट में भी देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में कि हाइप की हाई प्रोबेबिलिटी है जब डिसलाइक की बात कर रहा है कोई या किसी हेटफुल चीजों की बात कर रहा है. तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं. मान लीजिए कोई मूवी रिलीज हुई ग्रेविटी, अब उसमें बंदे ने कमेंट लिखा है आई एम स्टन्ड बाय द हाइप ओवर ग्रेविटी. तो हर एक वर्ड को देखेंगे कि हर एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी लाइक या डिसलाइक में होने की क्या थी. तो ये आ गया पी लाइक एंड पी डिसलाइक. पी लाइक इज ग्रीन, पी डिसलाइक इज रेड. तो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा. अब लाइक की प्रोबेबिलिटी, अब ये जो राइट में टेबल है आपके, उस टेबल में से आप जो फिगर नंबर डाल के यहाँ प्लॉट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो लाइक क्या आ रहा है 0622, डिसलाइक क्या आ रहा है 4720, मतलब
डिसलाइक इज मोर, तो मतलब डिसलाइक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो कि ऑब्वियस है, आई एम स्टन्ड बाय द हाई पावर ग्रेविटी, तो ये डिसलाइक वाला कमेंट है। तो ऐसे ही ये कमेंट्स जो है क्लासिफाई होते हैं, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन काम करता है, वेरी बेसिक मैंने बताया आपको। So actually, I have an example for the sentiment classification. There is a company called Qualtrics. Qualtrics is actually world leader in this. Unka actually client, there's a client, there's a hotel in Singapore called Marina Bay, I guess. So their Qualtrics client is Marina Bay, and Qualtrics has been recently acquired by SAP. So what Qualtrics do is they unka data analysis karta hai, only for the recommendations given by the customers to the hotel. So for example, what they were data analyzing the stuff, and they found that in customer recommendation and complaints, the common word which has more probability was that was being used was iPad. So hotel guys were actually amazed why would an iPad would use being used word why would a word iPad being used in a hotel recommendation. So they did a data analysis. So what actually happened was, when we move out and we have an evening flight, and we actually usually check out in the morning so we can actually go and see the city and come back and pick up the stuff before boarding the flight. So in recommendation they find out, in data analysis they find out the iPad word was being used because due to mishandling of luggage by the hotel staff, few iPads were broken or damaged. So they could actually go through the root cause, and actually they trained their staff to actually improve their handling of the luggage. So this actually helped them to improve their recommendations also. तो ये डॉग और कैट है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमारे लिए जो चीजें इतनी सिंपल हैं, हम क्योंकि सोचते ही नहीं है बैठ के कि मतलब ये यार डॉग और कैट है, इसमें डिफरेंशिएट करना कितना इजी है, मतलब क्यों हमारे लिए चीजें बहुत वो हो गई है, मतलब आदी हो गए हम लोग, ये करते रहे, बहुत सिंपल है। मशीन के लिए ये कैट की आई हैव टू फीड अ मशीन विद 10,000 इमेजेस ऑफ कैट एंड 10,000 इमेजेस ऑफ डॉग, देन इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डॉग कैसा कैसा नहीं है। और अभी देखिए ना कि बच्चे को हम लोग एक एंगल से दिखा देते हैं और उसको डॉग का हल्का सा ऐसे पोर्शन दिखाऊं मैं उसका, तो भी वो समझ जाएगा कि डॉग है, लेकिन मशीन के लिए उसमें कंफ्यूजन होती है। कई केसेस ऐसे हैं कि वो एक डॉग होता है ना, चिहुआहुआ बोलते हैं उसको, छोटा सा होता है जो, राइट, वो मफिन के जैसे लगता है। तो एक मशीन, हाँ, तो मशीन के तो मशीन लर्निंग को ट्रिक करने के लिए एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था आज से 2-3 साल पहले, इन विच चिहुआहुआ इमेजेस वर फेड इन एंड मशीन क्लासिफाइड देम एज डॉग्स। तो ये भी चैलेंजिंग इश्यूज है, ठीक है, तो इनको अब सॉल्व कर लिया गया, बट या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मोहित। कंप्रेशन डिस्टेंस, तो आप एक एग्जांपल दूंगा मैं आप सबको, अगर आप कर सकते हैं, आपके घर में बच्चे हैं उनसे बोलिए जिनके पास कंप्यूटर, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो रैंडमनेस, कैओस, ऑर्डर, डिसऑर्डर होता क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा, बहुत फिलोसफिकल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आप एक काम करिए, एक टेक्स्ट फाइल लीजिए, उसमें अपना नाम लिखिए, 20 बार लिखिए, और उसमें कैरेक्टर काउंट कर लीजिए। आपके नोटपैड में देखेंगे ना, कैरेक्टर काउंट दिखाता है कि राहुल है तो राहुल के 5 कैरेक्टर्स है, मोहित है 5 है, अनिल के 4 है, तो राइट देम 20 टाइम्स। 20 टाइम्स लिखेंगे आप 5 कैरेक्टर का नेम, तो 100 कैरेक्टर्स हो जाएंगे आपके। अब आप क्या करिए, अब नाउ इज या Spaces will be also a character, right? Cases? Spaces. Yeah, without any spaces, exactly. Yeah. तो आपको क्या करना, नाउ इट्स योर टाइम टू बी अ मंकी, ओके। अब बंदर बन जाइए, आप रैंडमली की हिट करिए, 100 टाइम्स हिट करिए रैंडमली कीबोर्ड पे, ठीक है। अब उसमें ध्यान दीजिएगा कि उसमें भी 100 कैरेक्टर्स ही हो। एक को आप name.txt सेव करिए जिसमें आपने नाम लिखा था, जिसको आपने रैंडम हिट मारा है उसको आप random.txt सेव करिए। अब दोनों का साइज देखिए क्या है, सेव कर दिया आपने डेस्कटॉप पे, दोनों का साइज, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यू कैन सी द साइज आर सेम, right? Now use WinZip or whatever compression you have, 7-zip, whatever, compress both the files, then observe कि किस फाइल का साइज छोटा है या बड़ा है, और ये आप मुझे या बाद में शेयर कर सकते हैं, बताइएगा, इस पे सोचिएगा। नेक्स्ट प्लीज। तो अब क्विकली से मैं खत्म करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं हो, स्लाइड भी आई गेस थोड़ी बहुत ही बची है अपनी। तो अभी एक देखिए, एक प्लॉट है लेफ्ट साइड में, डे 1 को 5 इन्फेक्शन थी, डे 2 को 6 थी, 3 को 7 हुई, 4 को चौथे दिन 8 इन्फेक्शन हुई, 5th डे 9 इन्फेक्शन हुई। इसको एक प्लॉट करते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर है, साफ साफ दिख रहा है आपको, 5, 6, 7, 8, 9, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, राइट। अब इसका मैं प्लॉट बनाता हूँ, तो y = mx + c एक हमारी बेसिक 10th क्लास की इक्वेशन है, राइट। उससे प्लॉट से मैंने पूरे डेटा को समझ लिया, y = mx + c, यानी इन्फेक्टेड = डे + 4, यानी अगर छठा दिन है, छठा दिन यानी 6 + 4 10, राइट है ना।
यानी छठे दिन को 10 लोग इन्फेक्टेड होंगे, सातवें दिन को कितने होंगे, इस इक्वेशन में डालूंगा मैं, तो 7 + 4 11। तो आप ये देखेंगे, ये एक्सेल शीट, मान लीजिए मेरे पास कोरोना इन्फेक्शन की एक्सेल शीट है, 1 करोड़ उसमें रोज है, उस रो को मैंने कंप्रेस कर दिया एक लाइन की इक्वेशन से, y = mx + c। तो ऐसे आपका विनरार कंप्रेशन काम करता है। ये जो आपके जो फोटो नहीं लेते हैं कैमरा, उसको कंप्रेस कर देते हैं, फोटो बहुत बड़ी होती है मेगापिक्सल की, उसको कंप्रेस करके सेव कर देता है, ऐसे कंप्रेशन काम करता है, डेटा कंप्रेशन। और ऐसे ही मशीन लर्निंग में कंप्रेशन होती है। तो आपको क्या लगता है कि एक क्वेश्चन और है कि क्या आपको लगता है कि कोरोना लीनियरली स्प्रेड होता है? ये रिप्रेजेंटेशन सही है? ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, क्योंकि लीनियरली कोई भी चीज नहीं चलती है। ना हाउस के प्राइस लीनियरली बढ़ते हैं, ना सैलरी हमारी लीनियरली बढ़ती है, ना हमारी हाइट लीनियरली बढ़ती है, ना डिजीज लीनियरली फैलते हैं। एक टाइम पे जाके टेपर ऑफ होने लगते हैं ऐसे। किसी घर में अगर 10 कमरे हो गए तो इसका मतलब ये नहीं उसका इनफाइनाइट पैसा होना चाहिए, राइट? इन्फिनिटी इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ सिनेरियो। तो एक टाइम पे जाके टेपर ऑफ होने लगती है चीजें। मोहित, नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेंजर फ्रेंड रिलेशन कोरिलेशन। अंकित है, गौरव है, नए नए दोस्त बने। अंकित ने बोला भाई ये मूवी बहुत फाड़ू है यार, देख ले देख ले। गौरव जाता है देखता है, उसको बोलता है यार क्या रत्ती मूवी बताई, बोलता नहीं, उसको मुंह चुप रहता है उसके। अंकित बोलता है भाई ये मूवी देख ले, चलते चलते, वो चला जाता है। तो अंकित गौरव के साथ रहते रहते गौरव को ना अंकित का नेचर पता चलता है कि भाई अगर किसी मूवी को 5 स्टार बोल रहा है ना, तो मतलब वो मेरे 3 स्टार के बराबर है, ठीक है? ऐसे ही तो ये कोरिलेशन है। मैंने उसके साथ आपसी सामंजस्य बना लिया, मेरा कोरिलेशन बन गया उसके साथ, एंड मैं अंडरस्टैंडिंग बन गई, ये फ्रेंडशिप है। मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये चीज बोल रहा है, इसका मतलब ये है मैथमेटिकली। मोहित प्लीज क्विकली, मैं खत्म कर रहा हूँ, बस थोड़ी स्लाइड बची है। सो FAQs, व्हाई डू वी नीड मैथ्स फॉर AI/ML? क्योंकि सारे डेटा को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लाना होता है। पिक्चर्स को, मैं जो आवाज बोल रहा हूँ, जो कमेंट्स हैं, उनको सबको नंबर में लाना होगा। और नंबर में क्यों लाना होगा? नंबर में मैं ले आया किसी डेटा को, तो उसपे मैं सारी कैलकुलेशन प्लॉटिंग कर सकता हूँ, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी सब लगा सकता हूँ। तो सारे इमेज को भी हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी नेक्स्ट बात करूंगा, कभी बात में। तो या मोहित, नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी खत्म करता हूँ इसको, टाइम ज्यादा हो गया। आर वी लिविंग इन सिमुलेशन? आप लोग सोच ही गए, क्योंकि कई बार मैट्रिक्स जैसी मूवी आई थी, उस पे हम लोग ने बहुत 20 साल पहले, 18-19 साल पहले देखी थी, तो हमने सोचा एक्शन मूवी है, बट उसका बहुत ही डीप मीनिंग्स है। इट्स अ वेरी डीप मूवी, वेरी वेरी डीप मूवी। मैं उसको बहुत बार रिपीट में देखता हूँ, मतलब 1-2 महीने पे देखता हूँ जब भी आई फील लो। इट्स वेरी इंस्पायरिंग मूवी, मतलब मेरे को तो बहुत इंस्पायरिंग लगती है, क्योंकि उसके बहुत ही ज्यादा, मतलब इट्स लाइक मतलब चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे कभी। Go थोड़ा ahead. से, Actually, don't go ahead. People will actually correlate with it. हाँ, तो इट हैज फिलोसफिकल, मैथमेटिकल एंड रिलीजियस, एवरीथिंग इज कंबाइंड, एवरीथिंग इज अमेलगमेटेड इनटू दैट मूवी। वो बताता है कि कैसे हम रियलिटी, इट्स नॉट रियलिटी, मशीन्स ने जो कब्जा किया है हमारे ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, उसका एक इट्स नॉट द डायरेक्ट मीनिंग। जैसे हम रिलीजियस बुक्स में हमारे ऊपर दिया था ना कि इविल है, गुड है, या इसका these guys are trying to force upon us, कैसे हमें चीजें कंट्रोल कर रही हैं, हाउ दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल। ये सब सारी चीजें, सारी फिलोसफीज बोलती हैं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल। द सेंस ऑफ टच, जैसे मोहित ने भी बोला था ना कि जो ब्लू इसको दिख रहा है, वो ब्लू मुझे नहीं दिख रहा होगा। कई बार मैं सोचता हूँ ना कि कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि मैं ड्राइंग बनाता हूँ, कि ये ड्राइंग मैंने जो मेरे अपने फेस का बनाया है, या कोई चीज बनाई, वो इस बंदे को भी वही दिख रही है क्या? तो मैं उससे बार बार पूछने लगता हूँ कि तेरे को ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो वो चीजें में डीप जाने में, मतलब मैं स्किप करता हूँ, मैं थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा इसमें भी आज के मैं इसमें थोड़ा वो चला जाऊंगा, ठीक है, बाद में कभी करेंगे इसको। या सो अनिल प्लीज। तो अब अनिल की स्लाइड से पहले मैं बताना चाहूंगा, आप ये स्लाइड भी पढ़ लेना, टाइम नहीं है क्योंकि अनिल को टाइम चाहिए भी। तो मशीन लर्निंग अगर ब्रेन है, तो सेंसर्स एंड IoT जो है हमारी सेंस ऑर्गन है मशीन लर्निंग के। दे आर आई, ईयर, नोज, स्किन, टच, ऑल दीज थिंग्स, राइट? टंग। IoT is wrong. IoT हमें डेटा देता है, उस डेटा पे ही हम काम कर सकते हैं, उसके बिना हम अंधे हैं, मतलब मशीन लर्निंग इज ब्लाइंड विदाउट इट। सो मेरा हेल्प करने आ रहे हैं लाठी पकड़ाने अनिल जी। IoT is Internet of Things, by the way, as an Yeah, IoT is Internet of Things. Yeah. So Anil, take it over. You need to unmute your mic, Anil. Yeah, IoT is the Internet of the thing. Like something, any device, if you connect to the internet, we consider as the device as the Internet of the thing. Yeah. The thing is, example, if you have any sensor, you can consider any temperature or any sensor. If you connect the whatever the device, the temperature device, if you connect to the internet, it becomes the Internet of the thing. In other terms, we call it as a M2M, machine to machine. Also, we can other than the IoT, we can call it as a M2M also. Cisco, they call it as the Internet of everything.
like that. So many names are there. The thing is, usually whatever any device, if you connect to the internet, we consider as it's a IoT. Okay. For example, something. For example, if you consider something, we are booking something, any cab or something. After that, we will be going to watch in our mobile something where the cab is coming. That cab have the GPS tracking. It's sending the longitude, latitude, whatever the data to the internet, and that internet from server to again for mobile. Our mobile, it's the data is coming, and we are tracking the cab. This is one of the IoT example. So the whole actually the process is followed through IoT. IoT is again an Internet of Things. This is how the systems are integrated through softwares and machine. So there has to be a bridge between a machine and a software to work. For example, if you take a normal laptop or a mobile phone, it has a processor to it and a software. The bridge between these two has to be an IoT. So the language they speak commonly, it has to be an IoT. Yeah, if you consider something Hollywood movie and all, they will call it as a Skynet. I think you know about Terminator movies and all. They used to call it Skynet, right? All the robots, they're connected to the satellite. Yeah. The satellite is controlling all the robots. Yeah. That is a Skynet. Yeah. In simple word, we call it as IoT. The thing is, this market is very big. Actually, in the 2013, in 2013, 9.1 billion devices is connected to the internet. In 2013, by 2000, can you come up the figure again, Anil? In the 2013, 9.1 billion devices connected to the internet. Right now, by 2022, the expected number is 28 billion devices will connect to the internet. And the market growth is, in the 2013, it's a 1.9 trillion. Right now, the market value is, it's a 7.1 trillion. It's a 3 times Indian economy. Yeah. Indian economy is 2.8 trillion. The IoT economy is 7.1 trillion. You can just imagine how fast it's growing. In the 2013, it's just a 1.9. Now it's reached almost 7.1 trillion. The thing is, any device you imagine, those all devices are already connected to the internet. It's like that. And you can consider, 1 minute, first slide, Mohit sir, first slide. Yeah, here, first we can consider, first, if you want to send the data to the internet, first we need to read the data. What all those? The thing is, you can consider something. If you go to the petrol bank, they will put you petrol. And also the main seller will be there. They are always reading how much petrol level they are going to read in the petrol bank. And something, you can consider something temperature. In any factory, the temperature should be some 30 degrees. That time, the owner sitting in somewhere and he is reading the factory temperature. If it is more, automatically some fans will on, some ACs will on. When it cool down, again the fans will off, like that. Yeah. Yeah. And how to connect the device to the internet? There is so many ways we can connect device to the internet. One major thing is Wi-Fi. Using Wi-Fi, you can connect to the internet. Other than that, GSM, 2G, 3G, or any LTE. LAN. Yeah, LAN. Using you can connect any device to the internet. The major widely used is Wi-Fi, and we call it as a wireless sensor network. Wireless sensor network is something in one factory, 1,000 sensors are there. We are not connecting all the sensors directly to the internet. First, we build one wireless sensor network in the factory. One main router will be there. Those all sensors connected to the Zigbee or Bluetooth. Right now, LoRa technology. Then all data we collected in one place. Then that place is connected to the internet. So Anil, I think we can also predict, right, that which sensor will be failing in factory, right, using IoT. Yeah. Everything we can observe.
If the sensor is not reading, then we can send the data to the server. The sensor is not working. Yeah, and we can predict beforehand also that this sensor has a high probability of failing like after 7 days or 10 days, something like that. Yeah, we can build something analytic. Depending upon that, we can predict when the sensor will going to stop this work. Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Next. Should I go next? You can take some examples here. Here they are tracking, remote monitoring vehicles. You can monitor it, and in the supply chain management also we can monitor how much production is happening. Everything we can monitor sitting in home remotely. Okay. We have CRMs, we have analytics and cloud on APIs, upgrades and configuration of the systems, remote monitoring, logistics monitoring, remote monitoring, maintenance of the factories, of the manufacturing units, control and automation of offices, houses, factories. These are actually run through. This is the same thing. Software talking to the machine, and it is run through IoTs. And our mobile is also like it's IoT device only. Exactly. Yeah. It's IoT device. So next. Yeah, regularly we use a lot of IoT devices like mobile phone and Nest, Google, and Google has a wonderful range of devices and IoT. Yeah. Called as Nest, as cameras, thermostats, Google Home devices. They are actually interconnected also. Yes, this kind of a lot of devices it's already connected to the internet. And we have actually diverse applications in transport, health, buildings, home, consumer electronics, roads, infrastructure, constructions, everything. So healthcare and smart cities and healthcare have a lot of exactly. potential. Healthcare is actually coming up good because there's a device actually being built in Gangaram Hospital. It's for I think it's for the diabetic foot. So actually, diabetic foot, they put a sensor in the heart of the patient, and actually what it does is actually increases the flow of the blood to reduce the diabetic foot. So it will actually the IoT in it will actually run through the body that first it will actually realize the patient has a diabetic foot, and then actually it will increase the flow of the blood according to that individual person. So the flow of blood will actually reduce the risk of diabetic foot. So their healthcare is going amazingly well. So for example, you can consider something Apple Watch that is completely it's monitoring your pulse rate and your oxygen level, everything it's monitoring, and you can if you give watch to your father and all, you can monitor his complete health by sitting somewhere. That is a completely IoT device. So I'm forgetting there's a device which is connected to an app, and it's been launched in North America. It's for diabetic patients, right? So what they do is they actually patients have their diabetic value from 600 have come down to 200 in less than 6 months. What it actually tells you is that what to eat or when to eat, and it is tied to your hand. It actually the IoT actually realizes your pulse, temperature, what is the effect of what are you eating, any energy levels losing, and a lot of stuff. So actually that I'm actually forgetting the name of the device. So it's actually helped. It has helped a lot of people to reduce their diabetic levels. Yes, sir. Yeah, compound application. Anil? Yes. Yeah. So last one. This already the Yes, we can the IoT device, we can use it in smart cities and transportation. The thing is, recently we developed one project. It's like a smart street light management. The thing is, by sitting you can consider something government body is there for KEB or something. We can in Karnataka we call it as a KEB, Karnataka Electric Board. We supplied one IoT device to them, the IoT street light to them. The thing is, they will sit in their office and they will schedule the timing when the street light should on, when the street light should off, and they will read the complete data, how much power consumption level, everything they will read by sitting in their house or they're sitting in their office. The thing is, before the system was like that, someone should go every day and they should put the fuse, or they should
make it on, and again they should go morning, again they should off the light. Yeah. Now using the IoT, we can make it on anytime, and if it is any electric accident happens, if someone calls, right, if you need to send someone to cut the cable or something, it takes time. By sitting here, we can completely cut down the power. Even in electric accidents also, we can use the IoT thing. Yeah. So I remember actually I was studying somewhere, there's an application being built upon, like, so exactly, when a student actually enters a college or a university, so, there's a thing called geofencing, geotagging. So actually the teacher can actually, or the parent or the management can actually look upon the stuff that where in the campus the student is. And if there's a geo tagging and geo curtains, like geo tagging is like more or less like a how do I think? Okay, it's more or less like a Wi-Fi of that particular room, and then we have a geo curtains to stop that. So suppose the lecture is for, like a university lecture is for 1 hour, and we have a differential of 2 minutes. So if a student is in that area for 58 minutes, so his attendance will be marked. In addition to that, they're building devices like, there will be cameras in the classroom. So as the student enters up, it can actually, the IoT in that, it can actually, check the activity level of the student, how active he or she is, how attentive he or she is, how much he yawns, by pupils, with dilation, eyebrows and stuff and like that. So IITs are actually helping in big ways to, to expand machine learning. Yes, yes, Moise. Actually, yesterday we were discussing about something. When I'm going to office or something, I can switch it on my AC before reaching the office. I can set the temperature before I am entering to my office. That is all possible using IoT system. ACs are also coming up with the fact that, you just need to set up your temperature, right? Suppose, Yes. for example, I set it at 24 and I sleep. By the morning I wake up. So even it's maybe probably some certain advanced air conditioners might have a temperature control. It will actually go from 24 to 28. But that 28 in the morning would not be appropriate on a rainy day outside, right? So there are devices being made according to the temperature and body type sleeping inside. The air conditioner will actually, increase or decrease the temperature also. So healthcare and smart homes are actually next big thing in AI, machine learning, and IoTs. And even in smart home application, it's booming actually. Yeah, it's booming. Yeah. Smart buildings, mobility. Yes. Yeah. So this is smart buildings, mobility would be, the perfect example that Anil gave about street lights, that these guys are working for the Karnataka government. Yes, sir. You want to take it? Yeah. In real-time service network, if you consider something, any application monitoring, like if you have any hotel or something, that time you can monitor something sitting somewhere. You can monitor how much sales is happening. Everything you can monitor, and also if you have something, any laundry, if you put any clothes into your laundry, something washing machine and all, you can sit somewhere and you can watch. Is it really completely washed or not? Everything you can watch. See, there's another example of, real-time service networks would be an example of heat maps that, you can be generated in public areas. So for example, in a mall, devices can actually generate heat maps. Heat maps would be equal to, for example, we have a mall in Ludhiana, for example, Pavilion Mall. So those devices can actually tell the, management of the mall that this area have approximately more, traffic in terms of people in this part of the mall. So you can actually increase your revenue by billboards or probably the rental part of the shop actually directly there and all. So these are also done through IoTs and everything. So yes, exactly. The thing is, actually, we after discussing this, I remember one thing. Actually, we developed a smart metering system for hotel chain. The thing is, they were something lag of something electric consumption. The thing is, the owner is more worried about the electric. Every month, the one hotel electric bill was something more than 50,000 to 1 lakh rupees.
The thing is, he wanted to control where exactly the electricity is pooling. So we developed a smart metering system and a smart electric management system. He installed in all his hotels, more than some 15 hotels was there. He installed everywhere. The thing is, by sitting here, he can completely observe how many devices is on in his hotel. And also the thing is, the hotel is supposed to shut down by 10 o'clock. After 10 o'clock, even if it is consuming more power, he can switch off all the devices by sitting here. Okay. That is all possible through this IoT. And the digital farm, you can completely monitor your something animals and water level for animals, food level. When you can completely schedule it, something when the food need to supply for animals. Anil, there is a member in our chapter called, her name is Dr. Sukirat Man. Okay. At her farm, they actually supply cow milk. So Okay. at her farm, it's a very modern farm. What they have certain sensors at the below the neck of the cow and certain sensors on the ear of the cow. So what they do is they actually calculate how much the cow is chewing it. Oh, okay. So the amount, the data generated with the reference data, they actually know if the cow is chewing properly or not. Okay. So these are certain examples of doing this. And, retail chains, for example, Anil has a family of 4 people and he normally buys 2 kind of stuff from a Reliance Fresh, for example. So, and the system knows that the article 1, Anil will consume in 1 month. So Okay. if Anil has bought article 1 on the first day, and if he tends to go to the Reliance Fresh mall, not after 1 month, but before a month, that say about in 15 days. So as soon as he enters the mall, the system will recognize Anil is here in before time. So Yes. the system will recognize that Anil is not here to buy article 1, he is here to buy article 2. So if the stocks in the Reliance Fresh of article 1 is higher, so the system will actually generate a special offer specific to Anil, push it as a WhatsApp message or email or whatever it is. So Offers. it will actually tend Anil to buy article 1, which he was not actually, supposed to buy that also. So Yes. these are IoTs and machine learnings are helping, people to actually get to crux of what is this. So this is actually helping businesses and all. Yes. So thank you, Anil. Thank you, Rahul and members. And can I have, if you have any questions, I would love, these guys would love to answer it. Great. Yeah. Any questions, guys? So for businesses, actually, apart from using AI, actually you can use for probability and stuff. For example, Dilip ji is here. Dilip ji, Rahul is actually into printing, right? So he can actually use it for customer behaviors. For example, he is into printing of cards and all. Rahul, can you take this question? I think I have a Q&A here. I missed the question. What was that? Okay. Just a minute. So the members are asking, how can AI and machine learning, apart from they need not to buy devices, and IoT is a separate thing. They can actually go for consumer durables which have IoT and machine learning, which can they have. How can they use AI, right, into their regular businesses? With reference to, I think probability would do it. So okay, I'll give you a very basic scenario. For let's say Mohit was talking about heat map. So if you have a mall, or let's say if you have a a store, a very small store, or like Mohit has a Lakme salon, right? So if somebody, I can we can actually build a system wherein the machine can identify regular customers, and we can connect the customer visit with how many people are coming in, and what they're purchasing, what they are not purchasing, what is their behavior. So let's say the machine will be able to recognize that 4th or 5th time Rahul is coming in. So machine can greet me. Yeah. Rahul, the question is a little different actually. Yeah. That's machine learning actually. Okay. Yeah. Pushpinder has a question. We'll come back to Pushpinder. Very nice question, Pushpinder. But they are actually, the members are asking, apart from going for IoTs or machine learning and buying devices,
What they're actually asking is how can AI can be used. See, I'm gonna tell you that AI in the longer run would be helpful to use in with machine learning and all, but I'll take the answer out. I'll take the answer actually. So the AI can be used with the fundamentals of probability. For example, the LeapG is there, so the LeapG will actually have to do probability of how many people are coming to to get visiting cards printed, brochures printed. So if we have the data analysis of it, AI would actually help in that to find the probability of that. आपके पास जो डेटा है ना उसको अगर आप हमें दे सके then we can do lots of things with that. जो अब डेटा हम स्टोर नहीं करते हैं ऐसे ही पड़ा रहता है. Even members can do, but the only thing is AI can be used if you actually try to monitor your data, all the data of any kind of data. You will have a better picture to it. You monitor a data, then try filtering out the data, which is important. Then probably you will come to a point. For example, Inderjeet asked, Inderjeet is from the Ajanta Glass House, if I'm not wrong. You can actually filter out the data in terms of what kind of glasses you sell, what kind of customers you sell, and at what prices you sell. Maybe negotiating at a lower note or a higher note. So if you can, bring all the data to one common platform, then try to filter it. You'll have all the answers. I can actually personally tell you that on phone and everything. Now the next question is, please differentiate between a chatbot and AI-based modules. Okay. So chatbot are AI-based modules. I didn't get you what you were trying to say there, but I'll tell you what chatbot. So chatbot, there are quite different kind of chatbots. One of them, the very basic one is, simply it takes your question like I think somebody is typing what issue. Okay. So one of the chatbots, the very simple one is, वो आपको restrict कर देता है कि आप ये choice लेंगे ही नहीं. अच्छा आप जैसे कस्टमर केयर पे जाते हैं, चैटबॉट आजकल डोमिनोज और इन सब पे आ गए ना, तो they don't allow you to ask beyond a certain well defined paradigm. It's a very closed system. They have historical data stored and they actually learn from the historical data, but AI have permutations attached to it. Certain permutations and combinations that AI works for. तो अच्छा चैटबॉट क्या होगा कि अच्छा चैटबॉट समझ जाएगा. A very good chatbot should be able to understand the intent and historic context also. मान लीजिए आपने पहले सेंटेंस में बोला कि I am male, I am Rahul Singh ऐसे करके, देन आप बोलते हैं कि कुछ बात होती है. देन अगर वो चैटबॉट फिर से आपसे बोले कि what is your gender, means that chatbot is not taking into account the historic text or the historic conversation. तो चैटबॉट उतना इंटेलिजेंट नहीं है. इट इज सिंपली पुराना एक सेंटेंस याद कर रहा है, वो पुराना हिस्टोरिक डेटा नहीं याद कर रहा है. तो चैटबॉट के भी बहुत लेवल होते हैं. एक बेसिक चैटबॉट होता है जो आपको एक दायरे में क्वेश्चन पूछने देता है, उससे बाहर नहीं पूछ सकते आप. वो बहुत सिंपल होता है उसको बनाना. बेसिकली क्या होगा कि nowadays we have linear chat boxes, linear programming होती है उसमें, so we have linear chat boxes, very base. AI based modules are something different, which will actually chatbots can be there, but मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस है, इंफॉर्मेशन है. कोई बंदा आता है, कस्टमर आता है ना, वो देखता है, वो बोलता है कि यार वेबसाइट पे समझ नहीं आ रहा कुछ, ये क्वेरी थी मेरी तो वेबसाइट पे मिली नहीं. लेकिन एक चैटबॉट अगर हम रख दें, वो बंदे ने क्वेरी मारी, तो वो टेक्स्ट वहां से उठा के उस क्वेरी के हिसाब से उसको आंसर मिलता है, वो दिखा देगा कि हाँ ये है हमारे पास, राइट. अदरवाइज वो बोलेगा कि आई एम सॉरी, मैं कॉल आपको नंबर बताता हूँ, वहाँ कॉल कर लीजिए, वो आपको बता देगा. तो ये थोड़ा इंटेलिजेंस आ गया, राइट. और अपने कस्टमर की क्वेरी भी वहीं पे वेबसाइट पे ही पूरी सॉल्व कर दी विदाउट कस्टमर केयर. तो कुछ बेसिक क्वेरी आपने वहां सॉल्व कर दी उसकी. Okay, I guess Pushpinder, that solves your query, and you can actually call me for any other queries. Any more questions, members? I think we can give the numbers maybe a little later, and then they can. I'm not gonna give Rahul's number. He's gonna tell everything then. Yeah, okay, great. So thank you, members. Thank you so much for sparing your time here, and thank you, Rahul, and thank you, Anil, Mohit, for a wonderful session moderated today. And so members, let's have a little feedback for our speaker resources. Let's give them a clap once again, and then we can log off. Wonderful, super. So we are having a members, if you can, thank you so much, and with this we can log off the session. Thank you. Thank you, Mohit. Thank you, Shivani. Rahul Gulati ji, I can answer your question on a call
his question is how to use how to use and distribution of iron and steel. I can do that. Yeah. Yeah. Okay. Perfect. Right. Just Thank before you. members leave, we have a training tomorrow morning 8 o'clock for BNI Connect. So please log in and ask other members to log in also. Thank you and have a wonderful weekend. Okay. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you, Rahul. Thank you, Anil. Thank you, Thank you. members. Yeah. We can end the meeting. Mohit, you need to end it. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. Right. Thank you.